Today we are going to solve question number 7 of exercise 12.2. Chapter is Heron's formula, class 9th mathematics. A kite is in the shape of a square. देखिए, this one is a kite. अब kite में क्या है? A square, ये square shape और साथ में triangle with diagonal of square is 32 centimeters. अब square का diagonal 32 यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 32 centimeters. Okay. And an isosceles triangle of base. अभी ये जो triangle given है नीचे, this one is isosceles triangle. Its base is 8 centimeters. Other two sides are equal and each of the equal sides is 6 centimeters. एक side भी 6 centimeter, दूसरी side भी 6 centimeter. What is question? How much paper of each sheet? देखिए यहाँ mention कर रहे हैं 3 different shades are used. यहाँ पे इस पूरे काइट को बनाने के लिए 3 शेड्स यूज हुई. ये डायगोनल भी ज्वाइन किया हुआ है. हम थोड़ी देर बाद इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे. इस डायगोनल को जब ज्वाइन करेंगे, वन इज अपर शेड, सेकेंड वन इज दिस वन एंड दिस वन इज द थर्ड शेड. पेपर ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द काइट. हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट. हमें फाइंड करना है हर एक शेड का कितना कितना पेपर यहाँ पे यूज हुआ है, वो हम फाइंड करेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. देखिए ABCD इज अ स्क्वायर. अगर ये स्क्वायर है, वी नो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री. इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होगा. आप ना भी ड्रॉ करें, बट मैं कन्वीनियंस के लिए यहाँ से एंगल B को 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे एंगल B इज 90 डिग्री. If ABCD is a square is always a parallelogram. अगर ये parallelogram है, we know diagonal of a parallelogram. This one is diagonal. Diagonal of a parallelogram divides it into 2 triangles of equal area. इसका मतलब इन दोनों triangles का एरिया भी इक्वल होगा. अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी हमारे पास आ जाएगा. ओके, वो एरिया होगा पूरे के पूरे स्क्वायर का. जब पूरे स्क्वायर का एरिया होगा, फर्स्ट शेड जो है वो हाफ होगी, सेकेंड शेड भी हाफ होगी. वी कैन फाइंड एरिया ऑफ शेड 1, एरिया ऑफ शेड 2. आफ्टर दैट वी विल फाइंड एरिया ऑफ शेड 3. फर्स्टली इस ट्राइंगल में वी हैव ABCD a square. If this one is a square, then its each side will be equal. Let the side of square be x. इसको भी मैंने x कंसिडर किया. x and x centimeters. Let each side of square be x centimeters. Now ABC, this one is the right angle at B. In this triangle we can use Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem in triangle ABC, we can say right triangle ABC. Okay, 90 डिग्री के सामने होगा hypotenuse. Hypotenuse is AC. AC square is equal to तो यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB is x, BC is x, AC. Now x square plus x square is 2x square is equal to AC स्क्वायर. हमने क्या फाइंड किया यहाँ से? AC स्क्वायर फाइंड किया. एक बार फिर देख लें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में. Kite is in the shape of a square with diagonal 32 centimeters. Okay, diagonal is 32 centimeters. अगर diagonal 32 centimeters है, it means AC will be 32 centimeters. Diagonal of square is 32 centimeters. Okay, देखते हैं. X is the side. Now AC will be, यहाँ लिख लेते हैं 32 square. Okay, 32 multiply 32. 2x square means 2 multiply x square.
तो 2 को यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ. Now 2 into 16, we have 32 multiplied 16. It can be written as 512. Now x square means side square. We can say side square is equal to 512. Side square is the formula for finding area of square. Side square means area. It means area of square is equal to 512. Side square is equal to 512. Therefore, area of square कितना हो जाएगा? 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने फाइंड किया एरिया ऑफ स्क्वायर. x is the side of square. X square means side square. Side square means area of square. So area of square is 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है? शेड 1 के एरिया. नाउ वी विल ड्रॉ द डायगोनल. सेकेंड डायगोनल BD. ये 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए diagonals of a square are always equal. AC will be equal to BD. Now ABCD is a square. Since diagonal, यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा BD of a square divides it into two triangles of equal area. It means अब ये जब डायगोनल है तो इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाएगा. Therefore, area of shade 1 is equal to area of shade 2. These two are triangles, so इन दोनों triangles का एरिया इक्वल हो जाएगा. अब कितना होगा? टोटल एरिया 512 है, so दोनों शेड्स का एरिया हो जाएगा 512 upon 2. That is 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, हमने फाइंड किया एरिया ऑफ शेड 1, एरिया ऑफ शेड 2. नाउ एरिया ऑफ शेड 3. शेड 3 इज अ ट्राइंगल इन शेड 3. यहां ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल. शेड 3 इज अ ट्राइंगल. हाउ कैन वी फाइंड इट्स एरिया? वी हैव ऑल द 3 साइड्स. जब तीनों साइड्स हैं, एक को A, एक को B और एक को C लिखेंगे. A is equal to 8, B equal to 6, C is equal to 6. Then we can find S. Therefore, S is equal to A plus B plus C upon 2, 8 plus 6 plus 6 upon 2, 20 by 2, 10. हमने S निकाल दिया. Now area of shade 3. S minus A, then S minus B, S minus C, 10, 10 minus 8, 2, 10 minus 6 is 4, 10 minus 6 again 4. 4 हमारे पास यहाँ पे पेयर में है. 10 को हम लिखेंगे 5 multiply 2, again 2, 4 into 4, 2 पेयर में है, 4 पेयर में है. सो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद एक 2 लिखेंगे, एक 4 लिखेंगे. स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रह रहा है 5, 8 root 5 centimeter square. Now what was the question? Question was how much paper of each shade has been used. So you can say paper for shade 1 is equal to 256 centimeter square, paper for shade 2 256 centimeter square, and paper for shade 3
8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम √5 को यहाँ पे सॉल्व करके डेसिमल में भी उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 6. We will solve question number 6 now. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. हमने दो अलग कलर्स का क्लॉथ यूज किया और एक अम्ब्रेला बनाया बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको कुछ पीसेस वहां पे शो किए होंगे, ऐसा है। 10 ट्रायंगुलर पीसेस यूज किए, एक अम्ब्रेला डिजाइन किया। नाउ 10 पीसेस बट टू डिफरेंट कलर्स। टू डिफरेंट कलर्स मीन्स 5 पीसेस एक कलर में होंगे, 5 पीसेस दूसरे कलर में होंगे। ईच पीस, अब हर एक पीस की जो मेजरमेंट है 20, 50 एंड 50। तो अगर पीसेस ट्रायंगुलर हैं, वी कैन से A इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 50, C is again equal to 50 centimeters. How much cloth of each color is required for the umbrella? अब इस umbrella में टोटल कितना क्लॉथ यूज हुआ? Each color, हमारे पास दो कलर्स हैं। एक बार फिर बोल देता हूँ, 10 triangular pieces are used here. जब 10 triangular pieces यूज हुए, it means एक कलर के 5 pieces, दूसरे कलर के 5 pieces. So we can find the area very easily. एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो एक शेड आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे दूसरी शेड आ जाएगी। एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 120 अपॉन 2, सो दिस इज 60 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। ओके, एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया कितना होगा? जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। दिस वन इट विल बी 60, 40, 10, 10। पेयरिंग करेंगे, 60 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10, 10 तो पेयर में बन जाएगा। 6 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, सो 2 इंटू 3 इंटू 10, दिस वन इज 60। 40 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10, 4 को भी हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10। अरेंज करेंगे इनको, 2, 2 and 2, 3 times 2, after that 3 एक ही बार है, 10, 4 times 1, 2, 3, 4, पेयरिंग। अनपेयर्ड कौन है यहाँ पे? एक 2 और एक 3, बाकी सारे रूट स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनका स्क्वायर रूट 10, फ्रॉम द सेकेंड पेयर अगेन 10, एंड इन द स्क्वायर रूट वी हैव टू मल्टीप्लाई 3, 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड किया? 1 ट्रायंगुलर पीस, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। एक बार फिर समझ लें हम, 10 triangular pieces have been used for stitching the umbrella. अब उन 10 में से 5 pieces एक कलर के हैं, 5 pieces दूसरे कलर के हैं। तो आप ऐसा करेंगे, एरिया ऑफ ईच कलर, एक कलर के लिए कितना एरिया यूज हुआ इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 triangular pieces. Okay, 5 triangular pieces means
वन ट्रायंगुलर पीस के एरिया को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 5 मल्टीप्लाई 200 रूट 6, इट विल बी 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बार फिर देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर. तो ऐसा कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, ये इसके साथ ही लिखना है, इज इक्वल टू दिस वन. सो दिस वन इज द एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर. हर एक कलर का क्लॉथ कितना यूज हो रहा है, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. वन मोर क्वेश्चन. Now we will solve question number 8. Question number 8 of same exercise. What is question number 8? A floral design on a floor is made up of 16 tiles. तो ये आप देखते हैं फ्लोर पे टाइल्स के डिफरेंट डिजाइन होते हैं. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक में ये डिजाइन आपको बना हुआ मिलेगा. इस डिजाइन में 16 टाइल्स यूज हुई है विच आर ट्राइंगुलर. साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर्स, 28 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स. तो पहले हम लिख लेते हैं ABC. हियर A is equal to 9 centimeters, B is equal to 28 centimeters, and C is equal to 35 centimeters. Okay. 9, 28 and 35. Find the cost of polishing the tiles at the rate of rupees 50 per centimeter square. 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे. एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लें. फ्लोरल डिजाइन है टाइल्स का बना हुआ, और वो डिजाइन कैसा है, ट्रायंगुलर पीसेस की शेप में. और एक डिजाइन में वी हैव 16 टाइल्स. अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर. ओके, 16 टाइल्स यहाँ पे यूज हुई. वो टाइल्स कैसी हैं, ट्रायंगुलर. और एक जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स हमारे पास गिवन है. ओके, ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स. अब टाइल्स को पॉलिश करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, लेकिन कॉस्ट तब पे करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि टोटल एरिया कितना है टाइल्स का. अब टाइल्स कितनी है, 16. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन टाइल. जब एक टाइल का एरिया हमारे पास आ जाता है देन वी विल मल्टीप्लाई द एरिया बाय 16 बिकॉज टोटल टाइल्स आर 16. 16 टाइल्स जब हमने फाइंड कर ली, एरिया ऑफ 16 टाइल्स जब हमारे पास आ जाएगा देन वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट. कॉस्ट किसकी फाइंड करनी है यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स. तो एक चीज को और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. ओके, कैलकुलेशन बाद में देखते हैं. देखिए ABC आर है S, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 9, 28, 35 अपॉन 2, 72 अपॉन 2. दिस विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर्स. हमने एस फाइंड कर लिया, दैट इज सेमी पेरीमीटर. नाउ एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल. एक टाइल का एरिया कितना आ जाएगा, S, देन S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. किरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई किया, 36 इंटू 27 इंटू 8, 1. पेयरिंग करेंगे, 36 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई 6 and 27 can be written as 3 into 3 into 3.
और 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2। अब एक बात का और ध्यान रख लें, यहाँ पे पेयरिंग हो रही है यहाँ पे, दैट्स वाई हम ऐसा रख सकते हैं इनको। ओके, दिस वन इज पेयर, पेयर अगेन पेयर। सो आउट ऑफ पेयर क्या है यहाँ पे हमारे पास 6 × 3, देन स्क्वायर रूट में क्या रह रहा है, एक 3 और एक 2 जो अनपेयर्ड। 6 × 3 is 18 √6। ओके, 18 √6 ये हमने फाइंड किया एरिया ऑफ वन टाइल। तो इसी को हम कैलकुलेट कर लें। इट विल बी 2.45 अप्रोक्सीमेटली। √6 की वैल्यू 18 × 2.45। approximately this one we have 18 44.1 0 ना भी लिखें, no need। okay, area of one tile is 44.1 centimeter square। now area of 16 tiles, area of 16 tiles 44.1 multiply 16, it will be 705.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कैलकुलेट किया हमने, एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फ्लोरल डिजाइन इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। This is 44.1 multiply 16, 705.6। okay, now what is question, cost of polishing। एक बार क्वेश्चन रीड कर लें। देखिए, find the cost of polishing the tiles at the rate of, okay, cost of polishing। see what is cost, 50 पैसे per centimeter square। it means cost of polishing per centimeter square means 1 centimeter square के लिए 50 पैसे is the cost। 50 पैसे cost of polishing। total area कितना है, 705.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतनी कॉस्ट। सो टोटल एरिया के लिए मल्टीप्लाई बाय 50 × 705.6। दिस वन इज द कॉस्ट इन पैसे। ओके, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन इज टू इजी। 50 multiply 705.6, this one is 35280 पैसे, but the same should be converted into rupees। so पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। now the result will be in rupees। ओके, 2 zeros are here, 2 नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। रुपीज 352.80। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। अगर हमें पूरी टाइल्स को पॉलिश करना है तो हमें इतनी कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ेगी। फॉर द सेम हमें फाइंड क्या करना था कि टोटल एरिया कितना पॉलिश करना है। दैट्स वाई हमने एरिया फाइंड किया। फर्स्टली एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल इज ट्राइंगुलर, दैट्स वाई हीरोन्स फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। देन हमने वन टाइल के एरिया को 16 से मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ 16 टाइल्स। आफ्टर दैट हमने क्या कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 centimeter square, then the cost of polishing total area, it will be multiplied। okay, then converted paise into rupees by dividing the result by 100। so this is your question number 8 of exercise 12.2। thank you।